So here you can check. Here we create one object where object two property are initialized with same value and one different value. So let's sometimes my requirement I want to create a new object where each object property is initialized with a different value. So here we require to pass three different value. So now before object is initialized with three different values. Now you can check here A, B, C. Sorry, here we require to default dot display. Again save it, run it. And now you can check here A, B, C are initialized with three different values. So then we have required when we require to use the constructor whenever you have create an object in a different version. Suppose I give one example here, you can understand where required to use constructor overloading. Suppose you have a shape. I have one shape, 3D shape. So shape may be cube and shape may be cuboid. So sometimes we require to create a shape as a cube type, and sometimes we require to create a shape as a cuboid type. If you are creating a shape as a cuboid type, so shape having how many dimensions? Shape having 3 dimensions. Yes. सही ए बी और सी सीक्वेंस में पहला 10 आया, ओके, दूसरा 20 आया, तीसरा 30 आया। सर इसमें हमने कंसीडर कैसे किया था सर, ये थोड़ा बताएंगे। 10, 20, 30 हमने 10, 20 ए पहले प्रिंट करा था, बी प्रिंट करा था सी। ओ ये वो छूट गया था मेरे से। ओके तो जैसा प्रिंट करेंगे वैसा आएगा ना। Suppose we have one shape. Shape is a maybe cuboid type or cube type. So whenever you have shape created as an entity, shape having 3 dimensions, length, width, and height. Actually, sometimes we want to create a shape as a cuboid type. If you want to create a shape as a cuboid type, it means you want to initialize length, width, and height with 3 different values. If your shape is a cuboid type, it means you need to initialize cuboid shape object with 3 different values. But if your shape is a cube type, then you need to initialize your shape dimension with the same values. This means if a shape is a cube type, then length, width, and height should be same. So let's try to understand. I'm created here one class, shape class. I'm created one shape class. I give the class name as a shape. And here we're selecting the main method also. Shape is an entity. If this is this entity having how many properties? There are 3 dimensions required: length, width, and height. And we require length, width, height. When we create a shape object, then we want to initialize this dimension. So I'm taking 3 parameters: length and width and height. Now what we are doing, we are initializing length, width, height. Length value by the length parameter. This dot length equal to length, this dot width equal to width, and this dot height equal to height. Okay. So when you create an object by using this constructor, it means you have required 3 different values. But sometimes I want to create an object where all in this dimension should be initialized with the same value. If you want to initialize all dimensions with the same value, then how many values you have required to pass? You have required to pass only one value because you want to initialize all dimensions with the same value. So in such a scenario, you have required to create one constructor which take only one dimension. Suppose whatever length you have, the same value have the width. So now we're initializing length and width by the same value. So now we define one function which is returning the volume of the shape. So this method what return? This method return the volume. How you can calculate the volume? Length into width into height.
So let's we create a shape object. I am creating a shape object. I want to create shape object as a cuboid. If you want to create shape object as a cuboid, so you have required to pass how many dimensions? 3 different dimensions. So it means in this time, which constructor you have required to invoke? You have required to invoke a constructor which takes 3 different parameters. Can you invoke this constructor? No, because my requirement, I want to create one shape object with 3 different dimensions. With 3 different dimensions you have required, it means you have required to pass 3 different dimension values. So then you have required to invoke which constructor? Then you have required to invoke a constructor which takes 3 different values. So let's say we passing some value 2.6, 4.5, and 6.0. Now we're calculating the volume for the cube, right? Volume of cuboid plus cuboid dot volume method. We're calling the volume method. Now we want to create a one shape as a cube. If you want to create a shape as a cube, this means at the time of creation the shape object, how many parameters we have required to pass? We have required to pass only one parameter. Why? Actually, shape object as a cube type, for cube we have required only one value. We have required to pass only one value, and the same value we need to set in the length, width, and to height. Here we are not required to pass 3 different values. Here we require to pass only same value, only one value, and the same value we need to set into the length, width, and height in all dimensions. So that's why here we need to overload the constructor. If you not overload the constructor, what happens? So you can create an object only with 3 different dimensions. You can't create an object with the same dimension value. So actually now my requirement is changes. Now we want to create a shape object where each dimension should have the same value. In this scenario, we have required to create a shape class object by passing only single argument. So that's why we are overload the constructor here. So let's here we pass single value, suppose 3.8. I'm calculating the volume for cube. So I'm calculating the volume for cube. Here we require to call cube dot volume method. Now run it and check it. So this is the volume of the byte, and this is the volume of cube. So understand the scenario why we need to overload the constructor. Here we need to overload the constructor because we want to create an object in a different version, in different way. Sometimes we want to create an object where we want to set 3 different value for an object. And sometimes we want to create an object where all 3 dimensions need to be set with same value. Clear? समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट कंफ्यूजन? किसी को डाउट बताइए? ओवरलोडिंग समझ में आई? आगे बढ़े? बढ़े आगे? Yes, sir. सर एक बार इसको रिपीट कर देंगे प्लीज। देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे? जैसे हमने बताया क्यूबाइड आपको क्रिएट करना, क्यूबाइड में कितनी डायमेंशन चाहिए? देखिए क्यूब या क्यूबाइड हो, डायमेंशन तो तीनों की सेम होगी ना भाई। क्यूबाइड भी 3 डायमेंशन रखेगा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्यूब भी 3 डायमेंशन रखेगा, लेकिन क्यूबाइड के केस में डायमेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। यस या नो? यस सर। मतलब जब आप क्यूबाइड टाइप का शेप क्रिएट करेंगे तो आपको 3 डिफरेंट वैल्यू पास करनी होगी ना, टू सेट 3 डिफरेंट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यस या नो? लेकिन जब आप क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हमें तीनों डायमेंशन की वैल्यू सेम वैल्यू से सेट करनी होगी, सेम होनी चाहिए। केवल कितनी वैल्यू पास करनी होगी? एक ही वैल्यू पास करने की जरूरत है ना, वहां पे 3 वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं ना। नहीं। तो उस केस में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए क्लास में जो केवल एक ही पैरामीटर ले, क्यूब के केस में ना।
लेकिन क्यूबाइट के केस में कैसा कंस्ट्रक्टर क्लास होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके, जिसमें 3 डिफरेंट वैल्यू ले रहा हो, यस या नो? बोलो भाई, अब तो समझ में आया? कंफ्यूजन? इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर नहीं को सर। ओवरलोड किया, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर जैसे पैरामीटर आपने डिसाइड कर रखे हैं और उसको अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो उसमें पैरामीटर बनाने की जरूरत ना होकर के पहले वाले कंस्ट्रक्टर से वैल्यू उठा लें। हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जस्ट कॉपी, वन ऑब्जेक्ट का कंटेंट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, उसका कुछ कंटेंट है, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू, सेम कंटेंट किसमें कॉपी हो जाए? दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट के कंटेंट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कंटेंट में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट आई हैव वन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज टू प्रॉपर्टी एन एंड बी। सपोज मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट क्लास है, अकाउंट क्लास। हाँ, सर आप हिंदी में ही बता दीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। अकाउंट क्लास है। मान लीजिए अकाउंट क्लास में 2 प्रॉपर्टी है, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम। मान लीजिए अकाउंट क्लास है, अकाउंट क्लास में 2 प्रॉपर्टी, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक अकाउंट आईडी और अकाउंट नेम। अब इस ऑब्जेक्ट का जो भी हम अकाउंट आईडी या अकाउंट नेम सेट करें, मान लीजिए इसका अकाउंट आईडी हमने 1 सेट किया, नेम मान लीजिए हमने कुछ भी सेट किया, हैरी सेट किया। इस अकाउंट ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए वेरिएबल मान लो अकाउंट 1 है, अकाउंट 1 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो दूसरा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इस ऑब्जेक्ट के पास भी 2 प्रॉपर्टी होंगी। कौन कौन सी? अकाउंट आईडी और अकाउंट नेम। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट वही होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अकाउंट आईडी में वही अकाउंट आईडी होना चाहिए जो पहले ऑब्जेक्ट के अकाउंट आईडी में। इस ऑब्जेक्ट का अकाउंट नेम वही होना चाहिए जो पहले अकाउंट का नेम है। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? कॉपी करना चाहते हैं, इस अकाउंट आईडी की वैल्यू इसमें कॉपी करना चाहते हैं और इस अकाउंट नेम का इसमें कॉपी करना चाहते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं। बात समझ में आई? जी सर। जरा देखिए, हमने क्लास क्रिएट की, अकाउंट क्लास। कौन सी क्लास? अकाउंट क्लास। इस अकाउंट क्लास में हमने डिफाइन किया प्रॉपर्टी इंट अकाउंट आईडी कामा स्ट्रिंग नेम। कौन सी? स्ट्रिंग नेम, सॉरी, 1 मिनट। अकाउंट आईडी स्ट्रिंग अकाउंट नेम। नाउ हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इनिशियलाइज करने के लिए। I'm creating a constructor. It will take 2 parameter account ID comma string account name. This dot account ID equal to account ID. This dot account holder name equal to account holder name. हम एक मैथड बनाया वाइड डिस्प्ले अकाउंट डिटेल मैथड, अकाउंट डिटेल्स मैथड। ये मैथड क्या करेगा? अकाउंट डिटेल डिस्प्ले करेगा। तो हमने कहा अकाउंट आईडी इक्वल प्लस अकाउंट आईडी system dot out dot println account name equal to account name। अब जरा देखिए, हमने मेन मैथड बनाया, स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट। हमने क्या किया? अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहला अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट 1 इक्वल टू न्यू अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट पास किया, इसको 1 पास किया, इसका नाम मान लीजिए हमने हैरी पास कर दिया। अब पहले अकाउंट ऑब्जेक्ट के पास क्या है? नाम, आईडी क्या है? नेम।
और नेम क्या है, हेड। अगर हम इसको डिस्प्ले करें, सॉरी हमारे मेथड का नाम क्या है, अकाउंट डिटेल। इसके अकाउंट डिटेल चाहिए अकाउंट 1 की, तो देखिए ये अकाउंट डिटेल बना गए, अकाउंट आईडी 1 और नेम इज हैरी। लेकिन अब हम दूसरा अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आप हमें दूसरा अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसमें भी वही डेटा होना चाहिए, सेम डेटा होना चाहिए जो कि अकाउंट 1 में है। तो इसके पैरामीटर में पहले को पास कर देंगे। अगर हम इसके पैरामीटर में आप कह रहे हो अगर पास कर दे, मान लीजिए सेम वैल्यू पास कर दीजिए, आप कह दीजिए। अभी हम कोई कह सकता है सेम वैल्यू पास कर दे तो सेम वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, ये इनिशियलाइज तो हो जाएगी, लेकिन हमारी जैसे रिक्वायरमेंट क्या है सुनिएगा पहले। मान लीजिए हम अकाउंट 2 को भी डिटेल डिस्प्ले करते हैं, अकाउंट 2 की भी डिटेल डिस्प्ले करते हैं, बात समझिएगा। इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, बेटर रहेगा। अकाउंट 2 की भी डिटेल डिस्प्ले करते हैं, सेम डेटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा। अकाउंट डिटेल क्या दोनों का नेम सेम आ रहा है ना, आईडी और नेम हैरी, यस या नो? दोनों अकाउंट की डिटेल सेम आ रही है, लेकिन कल हमने अकाउंट 1 चेंज कर दिया, अकाउंट 1 का नाम चेंज कर दिया, डॉट अकाउंट नेम, या अकाउंट आईडी चेंज कर दिया, हमने कहा 2 हो गई अकाउंट आईडी। अब जब अकाउंट 1 को अगर हम डिटेल डिस्प्ले करेंगे, अब हम अकाउंट की डिटेल जानेंगे, तो अकाउंट डिटेल और अकाउंट 2 की डिटेल जानिए। अब अकाउंट डिटेल तो देखिए क्या आएगी, दोनों सेम आएगी डिफरेंट अब आएगी? डिफरेंट है ये। हाँ, अकाउंट 1 तो चेंज हो गया ना अकाउंट आईडी, लेकिन अकाउंट 2 नहीं चेंज हुआ ना। नो मेरी सर, रिक्वायरमेंट है कि अकाउंट 1 में जो कुछ भी हो वही सेम अकाउंट 2 में आ जाए। कल अगर आपका अकाउंट 2 क्या हो जाता है, सॉरी चेंज, अकाउंट 1 की इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो अकाउंट 2 भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। सेम कंटेंट हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, किसमें कॉपी करना चाहते हैं? अकाउंट 2 में। अकाउंट 2 में। तो ये अप्रोच तो बेटर नहीं है, इस अप्रोच का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इस अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। भाई इसमें तो कल यूजर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग पास कर सकता है, आपको अगर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, ये तो आप अपने, है ना, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, यूजर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अकाउंट 2 को किससे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, बोलिए। अकाउंट सर 1 से सर। तो हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, अकाउंट 2 को इनिशियलाइज करना चाहते हैं अकाउंट 1 से। तो हमने क्या, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अकाउंट 2 के कंस्ट्रक्टर में अकाउंट 1 ऑब्जेक्ट ही पास कर देंगे। हाँ, अकाउंट 1 का ऑब्जेक्ट पास होगा तो आराम से अपडेट होगा, तो भी ये भी अपडेट हो हाँ, जाएगा। तो हमने अकाउंट 1 ही पास कर दिया सीधे। अब अकाउंट 1 किस टाइप की वैल्यू है, अकाउंट टाइप की वैल्यू है ना। क्या इस क्लास में ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर है जो अकाउंट टाइप की वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा ना, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, एरर आ रही देखो ना। तो आप क्या करोगे, इस Yes, क्लास sir. में कंस्ट्रक्टर बनाओगे, इस क्लास में क्या बनाओगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो किस टाइप की वैल्यू लेगा, अकाउंट टाइप की। चलिए तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया अकाउंट, लेकिन इस क्लास ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, अकाउंट टाइप की ले रहा है, अकाउंट एसी हमने वेरिएबल ले लिया। अब देखिए इस एसी ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर किसका रेफरेंस रिसीव करेगा, ये देखिए अकाउंट 1 का। अकाउंट, ये वाला जो रेफरेंस है, यही रेफरेंस आप इसको पास करो ना एसी को। अकाउंट Yes, 1 के sir. पास मान लीजिए, अकाउंट 1 के पास मान लीजिए कितना एड्रेस है, 1000, कितना एड्रेस है 1000, उसके पास भी आ गया ना। मतलब एड्रेस भी सेम हो जाएगा दोनों का। एड्रेस हम पास सेम कहाँ करें, जो वैल्यू उसको देंगे तो वही, वो तो वैल्यू वो भी होल्ड करेगा। जो अकाउंट 1 की वैल्यू वो किसको पास कर रहा है, पैरामीटर में पास कर रहा है ना। Yes, sir. ये वैल्यू हम पास करें भाई, हमारे पास जो चीजों का अगर हम तुम्हें पास करके देंगे वही वैल्यू तो तुम्हें पहुंच जाएंगे ना। सर इसका कहना मतलब ये क्या, इसका एड्रेस भी सेम होगा दोनों का, किसका, अकाउंट 1 और अकाउंट अकाउंट 1 और 2 का। अकाउंट 2 का। नहीं अकाउंट 2 का एड्रेस कहाँ सेम है, ये तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट 2 तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस अलग होगा। अकाउंट 2 में सिर्फ 1 का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, ये मैं अकाउंट, जस्ट उसको कॉपी कर रहे हैं। ये अकाउंट 2 का एड्रेस है, अकाउंट 2 का एड्रेस मान लीजिए 2000 है ना, ये इसमें मोड पॉइंट कर रहा है।
अकाउंट 1 अकाउंट 2 तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट अकाउंट है। हमने नहीं क्या नहीं, किया, आपने बोला सेम हाँ, करेगा सुनिए इसलिए। सुनिए, हमने जैसे आप अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अकाउंट 2 ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं, किसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, अकाउंट 1 का ना। अब Yes, sir. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा होना चाहिए जो अकाउंट टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज जो अकाउंट टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा, तो कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू पास करोगे वही तो रिसीव करता है कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। इससे पहले हम लोग क्या पास करे थे, 1 और हैरी। तो अकाउंट आईडी में 1 जाएगा, अकाउंट नेम में हैरी जाएगा ना। अकाउंट 1 का जो एड्रेस होगा, रेफरेंस एड्रेस, वो अकाउंट 2 के पैरामीटर में आ जाएगा। या ये हाँ, इस कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा एसी के पास, एसी एक वेरिएबल पैरामीटराइज। ये रेफरेंस sir. ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर एसी नाम का, जो कि किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, अकाउंट 1 को रिफर कर रहा होगा। यस या नो, क्योंकि हमने इसको अकाउंट 1 का एड्रेस दिया है, तो ये भी अकाउंट 1 को पॉइंट करने लगेगा। यस या नो, यस या मतलब नो। दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएंगे। यस, विद ना कंस्ट्रक्टर अगर अकाउंट 1 की डिटेल फेच करनी है तो किसकी हेल्प से फेच कर सकते हो, पैरामीटर, क्योंकि ये Account. पैरामीटर उसी अकाउंट को पॉइंट कर रहा है, किसको, अकाउंट 1 को। बात समझ में आई। Right. जी अगर आप एसी डॉट अकाउंट आईडी लिख रहे हो, मतलब ये किसकी अकाउंट आईडी है, पहले अकाउंट वाले 1, की अकाउंट पहले 1 और यही वाली अकाउंट आईडी किसमें कॉपी करनी है बताओ, अकाउंट 2 में। अकाउंट 2 में। और अकाउंट 2 का एड्रेस, अकाउंट 2 को कैसे एक्सेस करोगे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर बताओ। This पैरामीटर में अकाउंट नहीं, अकाउंट 2 नहीं पास करेंगे। इस समय करंटली कौन सा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, रिसेंटली कौन सा ऑब्जेक्ट, अकाउंट 2 है ना। अकाउंट 2 तो तो दिस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, दिस डॉट अकाउंट आईडी। यस या नो। यस सर। दिस डॉट अकाउंट नेम में किसका कॉपी कर दो, एसी डॉट अकाउंट नेम। यस या नो। सर अगर हम ये वैल्यू असाइन ना भी करें तो भी वैल्यू तो असाइन हो ही चुकी होगी कैसे assign S2 होगी? अकाउंट 2 को, कैसे ऐसा नहीं ऑटोमेटिक, होगी। ऑटोमेटिक कैसे ऐसा होगा? क्योंकि सर हमने अकाउंट 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी Account- मेमोरी में हमने दोनों वैल्यूज इंसर्ट की। अकाउंट 1 की वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है, अकाउंट 2 कहां इनिशियलाइज हुआ? अच्छा मतलब सर अभी एड्रेस को पॉइंट करेगा जब हम वो हमने करेंगे हमने तो सिर्फ इसको एड्रेस पास किया पैरामीटर में ना, ओके हमने सिर्फ एड्रेस एड्रेस दिया, पास की है, हमने हमने एड्रेस वैल्यूज दिया। नहीं दी अभी। हमने इससे कहा कि ये लो एड्रेस, इस मेमोरी से लेकर वैल्यू उठाओ और हमारे करंट जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अकाउंट आईडी अकाउंट नेम में कॉपी कर दो। अच्छा तो हमें लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट की Yeah. उसका जो वैल्यूज है उसमें कॉपी कर दो, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो अब जीरो या automatic- नल ही रहेगा। वो तो भाई हाँ, जीरो नल लेगा। हम उससे कहेंगे ना भाई हमें क्या करना, कॉपी करना है। तो जैसे हमने कहा कि ये लो हमसे एड्रेस जिससे कॉपी तुम्हें करना है, उस सोर्स का एड्रेस बताया हमने, ये लो तुम्हें जहां से उठानी वैल्यू, ये वैल्यू वहां, ये लो एड्रेस उस मेमोरी का, इस पैरामीटर में उस मेमोरी का एड्रेस पास किया, इसने उस मेमोरी का एड्रेस रिसीव किया, वो उस मेमोरी से अब वैल्यू उठाएगा, जो जो वैल्यू चाहिए वो प्रॉपर्टी उठाएगा और जहां कॉपी करनी वहां कॉपी कर देगा। टमाटर 50। समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। अब आया? तो सर ये जो अकाउंट 2 हाँ, सर। है, अब इसको अकाउंट जो कंस्ट्रक्टर कॉपी करने के बाद अब ये जो आप रेफर कर रहा है इस वाली मेमोरी को, अब वो उस वाली मेमोरी को ही रेफर करेगा या मेमोरी को इसी कंस्ट्रक्ट, ये जो एसी ये लोकल पैरामीटर ये रिफर कर रहा होगा सिर्फ अकाउंट 1 को, तो विदना कंस्ट्रक्टर ये तो लोकल पैरामीटर है ना, अगर विदना कंस्ट्रक्टर अकाउंट 1 की डिटेल एक्सेस करनी है तो किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पैरामीटर के थ्रू। ओके अकाउंट 2 तो अभी भी अपनी मेमोरी को ही रेफर कर रहा होगा 2000 में से सिर्फ उसकी वैल्यू को रेफर करेगा। क्लियर? अब हमने दिस डॉट अकाउंट आईडी लिखा, मतलब जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उस करंट ऑब्जेक्ट के अकाउंट में किसके अकाउंट से कॉपी करनी है, जो हमने इसको अकाउंट दिया है। अच्छा तो सर लोकल वेरिएबल जो है हमारा जो कि हमारा अकाउंट है एसी, तो हाँ। वो एड्रेस को रेफर करेगा अकाउंट 1 के, यस, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो हम पुट करेंगे करंटली एक्टिव ऑब्जेक्ट में वाया दिस कीवर्ड, उससे हम उसको पॉइंट कर देंगे। Yes. लेकिन जो हमारा जो सेकंड अकाउंट 2 है वो अभी भी अपनी मेमोरी को ही रेफर कर रहा होगा, दैट इज वो तो- 2000 नॉट 1000। नहीं वो क्यों 2000 को रेफर करेगा, इसके पास वो अकाउंट हाँ। 2 में हमने अकाउंट 2 में अकाउंट 1 का एड्रेस कॉपी नहीं किया है ना,
राइट सर, हमने एसी में किया है। हाँ, हमने और अकाउंट वन का एड्रेस किसको दिया, एसी वेरिएबल को दिया, तो एसी रिफर AC करेगा अकाउंट वन को। अगर आप अकाउंट वन की right. कॉपी अकाउंट टू में कर देंगे तो अकाउंट टू पॉइंट करने लगेगा अकाउंट वन को। राइट सर, गॉट। क्लियर? अब चलिए, जैसे हमने अकाउंट वन पास किया, अब जरा देखिए, जरा सेव कीजिए और रन कीजिए, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम कंटेंट इनिशियलाइज होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं किया जाता, क्यों? इंटरनली ये क्या कर रहा है, देखिए इस कंस्ट्रक्टर में कोड लिखा है इंटरनली, बस आप अकाउंट टू को अगर अकाउंट वन से इनिशियलाइज करना है, पास द अकाउंट वन ऐसा पैरामीटर। समझ में आया? यस और फिर इंटरनली हमने उसको स्ट्रक्चर लिख रखा है। सर इसका रियल सिनेरियो जैसे क्या होगा? ये कॉपी है ना, कभी भी कॉपी करना हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो, हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट का कंटेंट सेम हो जाए। जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। सर इसका एग्जांपल अगर देना चाहे रियल वर्ल्ड में तो क्या होगा? क्लोनिंग करनी हो आपको ना, क्या करनी हो, क्लोनिंग। क्या सर, क्या करनी होगी? क्लोनिंग 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 का मतलब क्लोन है ना, अच्छा सर, हाँ समझ गए, क्लोनिंग का, हाँ। तो क्लोनिंग कर सकते हैं इसके थ्रू कि नहीं कर सकते, है ना? सर यस हमें लग रहा होगा ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका क्लोन हम क्रिएट कर सकते हैं ना। है ना, क्लोन बनाने में जैसे सिम बहुत सारे क्लोनिंग की जाती है, सिम कार्ड क्लोनिंग है ना, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग क्लोनिंग है ना, सेम। हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई सॉफ्टवेयर है उसका डेटा बिल्कुल हमें दूसरे में डालना हो उस तरह से। हाँ, क्लोनिंग होगी। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन है आप बताइए। ठीक है सर। बताइए कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो दिस कीवर्ड का भी कितना बड़ा रोल है आपको मालूम होना चाहिए। दिस का मतलब करंट रेफरेंस को प्रेजेंट करता है सर, है ना? या कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो बताइए। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए करा जाता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सर। हाँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन है। मतलब जैसे ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी इनिशियलाइज कर देता है सर। हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो पूछ लीजिए। सर थोड़ा सा मेथड ओवरलोडिंग बता देते। सेम मेथड ओवरलोडिंग वही है, मेथड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दोनों का काम सेम है, बस नाम डिफरेंट है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। अब एक से ज्यादा जितने भी मेथड बनाने तो सबके सिग्नेचर आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। सिग्नेचर में मतलब या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बनाया है, सेम हम लोग किसके से क्या बना सकते हैं, यहाँ कोई मेथड बना दीजिए, अब कॉल कर दीजिए, सेम चीज। जैसे आप प्रिंट हम लोग यूज करते हैं ना, प्रिंट ओवरलोडेड मेथड है। अब ये जो प्रिंट यूज करते देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हो ना, ये प्रिंट ओवरलोडेड मेथड है। क्यों? ये देखिए, आप किसी भी टाइप की वैल्यू पास करते प्रिंट कर देते हैं ना, क्यों? तो जिस टाइप का पैरामीटर आप लोगे, ये देखिए कई सारे ओवरलोड है ना, जिससे जो सिग्नेचर मैच करता वही वाला झूठ हो जाता है। नाम एक ही याद रखना, प्रिंट आपको हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? यही क्या हो जाता है, मेथड ओवरलोड। बताइए कोई कंफ्यूजन? सर इससे रिलेटेड नो कोई सर। प्रैक्टिकल करने के लिए तो सर। इसका असाइनमेंट सर क्वेश्चंस दे दो। क्वेश्चन दे देते हैं।
अच्छे क्वेश्चन दे तो सिंपल दे। नहीं, अच्छे वाले देना सर। चलिए दो अच्छा क्वेश्चन दे दो, एक सिंपल एक अच्छा। छोटा सा फॉर्म बनाने के लिए दे दो सर, इसी से रिलेटेड। ठीक है चलिए। चलिए हम दे देते हैं अच्छे क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन यही पे सब भेज देते हैं। सर ये वीडियो यूट्यूब पे कब तक अपडेट हो जाएगी? आज ही अपडेट हो जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है आपको, तो आपको डिजाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बारे में उसके बारे में सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस आपको लिखने का तरीका कोड का आना चाहिए, है ना, कि कैसे हम लोग उसमें कोड लिखेंगे। ये सर उप्स को कौन सा वाला चल रहा था सर? कंस्ट्रक्टर ऊप से पूरा ऊप चलेगा, अब उसमें सब मिक्स होता है ऊप्स में। अब उसमें सब कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, जहाँ तक अभी तक जितना पड़ा उसी में से है। ओके सर। आपको एक अच्छा वाला दे देते क्वेश्चन। लॉगिन कर लेना पड़ेगा मुझे। सर ये पूरा कंबाइंड एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है। ओके सर। सर यहाँ पे चैट में देंगे या अभी क्लास के बाद आप इसका नहीं नहीं, ये डॉक्यूमेंट अभी शेयर अभी कर तुरंत देंगे? हम वो उसमें शेयर कर देते हैं नोटपैड फाइल में। अभी अभी कभी शेयर होगा, बाद में तो शेयर नहीं होता है। अभी का अभी हम शेयर कर देते हैं इसको नोटपैड फाइल बना के। फिर आपका शेयर कर देते हैं। आपको देखिए एक में आ गया होगा। सर किस पे, व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे। अभी तो रिसीव नहीं हुआ सर। किसी को रिसीव हुआ? हो गया सर। सर आपने किसी और ग्रुप पे डाला है क्या? नहीं आया सर। नहीं आया। नहीं सर। आ गया सर। हाँ सर अब आया आ सर। गया सर। यस सर, रिसीव। आर्ट्स मिला आपको? मिला? यस सर। यस सर। आ गया, सबके पास आ गया। यस जी सर।
तो ये क्वेश्चंस अपने मन से इसको ट्राई कीजिएगा लगाने का, और कोड लिखिए बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, हर चीज को उससे प्रॉपर्टी समझिए, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या है वो सारी चीज, और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते चलिए, बनाते चलिए। कल इससे इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे, इनहेरिटेंस स्टार्ट हो जाएगा, इनहेरिटेंस कल खत्म भी कर देंगे पूरा, ठीक है। सर अगर पूछे तो कोर जावा का कितना परसेंट हमारा कवर हो चुका है? अब इनहेरिटेंस जैसे खत्म होगा वैसे पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस खत्म हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस खत्म हुआ उसमें पॉलीमॉर्फिज्म टूल्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। वो तो सर एक नेक्स्ट वीक हाँ खत्म होने के चांस है। हाँ सर एक छोटा सा डाउट था। मैं एक बार सर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ सर? हाँ, सर एक बार परमिशन दीजिए। टाइमिंग कम बचा सर। शेयर कीजिए, तो सर एक छोटा सा ही शेयर कीजिए, डाउट है हाँ मेरा। हाँ, शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, परमिशन है। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाने होते ना? नहीं लगाने को आप लगा सकते हैं। सर क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख हाँ रही है? देख रहे, सर ये ना असाइनमेंट से रिलेटेड है जो आपने टिकट का जनरेट करने का दिया था। हाँ सर उसमें लिख तो लिया है, बस ये जो टिकट आईडी हो रही है ना ये मेरी एज अ न्यूमेरिक हो रही है। ये मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं ये इसको वो करेक्टर कैसे है। करूँ? देखिए उसने बोला है काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी कंस्ट्रक्टर के अंदर, यस सर। इनिट ना यूज कीजिए यहाँ पे, आप कंस्ट्रक्टर यूज कीजिए, जो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इन्वोक होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करोगे। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब करोगे सर इस वाले के लिए कह रहे हैं आप ना, या इनिट जहाँ पे इस वाले में? इनिट काउंटर की वैल्यू सर का काउंटर की सर वैल्यू। मैंने इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाया, मैं शेयर करूं हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे? आप अपनी स्क्रीन पे दिखा देना सर। ठीक ठीक है। काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, किसको इंक्रीमेंट करें, काउंटर की वैल्यू हरदम इंक्रीमेंट होनी चाहिए, हाँ किसके सर, अंदर, तो इस कंस्ट्रक्टर, वो भी इसमें ही रहेगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्यों, कंस्ट्रक्टर में? काउंटर कब इंक्रीमेंट होना चाहिए, जब भी कोई नया अपडेट क्रिएट हो ना। यस सर। और टिकट आईडी, सर उसमें ना हाँ देखिए, हाँ जो टिकट आईडी है ना सर, वो मैं आपने आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि सोर्स और डेस्टिनेशन का पहला करेक्टर और फिर काउंटर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो वो नहीं मैं कर पा रहा उसमें इसमें विद इन डबल कोड लगा लगा पाना। दीजिए, कॉन्केट हो जाएगा। सर डबल सर कोट मैंने लगा दूं यहाँ पे? हाँ सर मैंने व्हाट्सएप नहीं नहीं, पे याद एक नहीं है, प्रोग्राम भेजा, याद एक नहीं बार है, खोल के दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट स्टॉप कीजिए, फिर हम दिखाते हैं। हाँ सर इसका। हाँ ये तो सही बना है। ये देखिए, ये देखिए कंस्ट्रक्टर बना है, वैलिडेट, पहले तो इन्होंने सोच जनरेट टिकट कहाँ पे किया, ये किया है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही ले लिया इन्होंने पहले से। तो जब भी इस मेथड को ठीक है कॉल सर। करें काउंटर, वैसे बेटर प्लेस है काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा ना, तो जैसे इन्वोक यस होगा सर। काउंटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग फॉर्म में इन्होंने कॉन्केट कर दिया, तो स्ट्रिंग फॉर्म में जनरेट, वहाँ पे अब करेक्टर वैल्यू आ रही है, तो करेक्टर वैल्यू की ASCII वैल्यू में से ASCII वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक हो जाएगी। सब स्ट्रिंग यूज कर दिया, ये सही है, ओके सर। क्लियर। ये कोड हम आपको भी शेयर करते रहे, चलिए कल मिलते हैं। ग्रुप पे हाँ ग्रुप के बाद मीटिंग ओवर भी हो रही है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।